ब्रदर आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जैम सी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं रामरतन एक्स आर्मी 84 आर्मड रेजिमेंट 31 जुलाई 1996 ਨੂੰ मैं रिटायरमेंट पेंशन ते घर आया। आप आर्मी में थे हाँ जी। और आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है 1996 में, हाँ ब्रदर। और आप नवा शहर के रहने वाले हैं। हाँ जी ब्रदर। जब रिटायरमेंट हुई तो उसके कुछ सालों के बाद, यानी पिछले 20 साल से लगभग आप पागल हो चुके थे। हाँ जी सर। क्या हुआ था? ये कैसे शुरुआत हुई थी आपके जीवन में? पागलपन के जब अटैक होने लगे तो कैसे शुरू हुआ? ये क्या हालत हो जाती थी आपकी? खुल के बताइए अपनी गवाही को सबको आप। मैं ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਇਆ ਨਾ 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਡਰ ਲੱਗਣਾ, ਘਬਰਾਹਟ, ਵਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰਾਣਾ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੜਕ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈंने ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਬਿਜਲੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਗਾਤੀ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਵਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਡਿਊਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੌਦਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਿੜਕੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਦਾਂ ਡਰ, ਘਬਰਾਹਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਣੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਇਤਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, 2-3 ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਧੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਵਾਈ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲਾਤੀ ਔਲੋਫਿਨ 15-20 ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਇਹ ਖਾਣੀ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਜੇ पूरी लाइफ बारी खानी पर छुट नहीं सकती। क्योंकि जब आप वो गोली खाते थे तभी आपको नींद आती थी रात को। हाँ जी, जब मैं गोली खाना ताही नींद आती, उदा नहीं आती सी। और जब आपने सेकंड डॉक्टर को मेंटल हॉस्पिटल में जाके दोबारा जब चेक करवाया, आपकी फैमिली आपके साथ गई थी, तो जब डॉक्टर ने आपको अच्छे तरीके से आपका चेकअप किया तो आपकी फैमिली को क्या बताया कि क्या हुआ है आपको? उन्होंने फैमिली ने दसिया भी डरता बहुत है, घबराता है, बहम करता है, तो इस तरह की हरकत करता है। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਘਟਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘਟਾਤੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਵਧਾਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ 15 ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। कितने साल से आप वो दवाई खा रहे हैं? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ 2002 ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ लगातार ये खांदा आ रहा है। लगभग 19 साल से आप उस गोली को हर रोज एवरी डे ले रहे थे, कभी मिस नहीं करते थे उसको? कभी मिस नहीं करते। और मेंटल हॉस्पिटल वालों ने आपकी फैमिली को ये श्योर बता दिया था कि आप पागल हो चुके हैं और आपको मेंटल हॉस्पिटल में वहाँ पे एडमिट कर लिया गया, वहाँ पे बिजली के झटके आपको दिए गए और लगभग आपने 20 साल लगातार इलाज करवाया अपना। जी ब्रदर। आपकी फैमिली आपको इधर उधर सब जगह लेके घूमे, लेकिन कहीं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था आपको। जी ब्रदर। आप पागल थे, इस बात का आपके रिश्तेदारों को, आपके आस पड़ोस वालों को पता था ये? जी ब्रदर। वो सभी जानते थे? जी ब्रदर। क्या क्या बोलते थे जब आपको देखते थे? तो वो देखते थे, हंसते सीगे, गुमसुम हो जाते थे, कहते कुछ नहीं सीगे, चुपचाप चले जाते सी। जे वो आंदे सी, कदे मैं उन्हां दे अगे हाथ जोड़दा सी, कदे उन्हां दे पैरीं हथ लांदा सी। ऐदां दी हरकतां करके देख के ओदे बस खामोश होकर चले जाते सी, कुछ नहीं कहते सी। आप देख सकते हैं कि शैतान कितना झूठा है। ये भाई आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, 1996 में इनकी रिटायरमेंट हुई थी। उसके बाद 2002 में ये भाई पागल हो गए थे, लगभग 20 साल पागल रहे। आपके रिश्तेदार भी जानते थे कि आप पागल हैं? जी सर। आपके आस पड़ोस वाले जानते थे? जी ब्रदर। जिसको जो भी आपके घर में आता सबको पता था कि आप पागल हो चुके हैं? जी ब्रदर। उस समय आपकी फैमिली आपको क्या बोलते थे, कैसे ट्रीट करते थे सभी आपको? फैमिली मेरी बहुत कोऑपरेट करती सी, यही मेरा ध्यान कर रखती सी। कदे बाहर भी जाते थे, आंदा सीगा तो मैनू बहुत मेरा ध्यान करते सी, वही ख्याल रखते सी, बच्चे मेरा ख्याल रखते सी। और आपको जब पागल जब हो चुके थे, आपको इतना भी याद नहीं रहता था कि अगर अब फैमिली आपको चाय पीने को देती तो गर्म चाय अपने सिर के ऊपर अपन ढेल लेते थे? जी ब्रदर। और कोई होश नहीं था आपको, कोई सुध-बुध नहीं थी कि मुझे कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। इधर उधर आपको 20 साल लगातार इलाज चला। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? उसके बाद 6-7 साल तो मेरा बेटा बहू ये प्रभु छन 6-7 साल तो 3-4 साल तो पहला मेरा बेटा छुट्टी आया तो उन्हें घरे प्रार्थना भी कराई ते वो अपना बपतिस्मा लेके इत्थों प्रभु के घर चों अंकनुल्ला मिस्ट्री तो लैके वो भी बस चले गया। तो जदों वो चले गया उसके बाद फिर मेरी बहू ते मेरा पोता छुट्टी पिछले साल 21 अपनी जनवरी 2021 छुट्टी आए तो उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, वो भी चले गए। लेकिन जदों सारे ये प्रभु वाल मुड़ गए तो मैं कला ही रह गया। मैं सोचा भी हुण ये किस तरह इन्होंने मेरे मगर चलना, ये जाते किधरों है, ये की गल हुई? क्योंकि मैं भी इधर उधर बहुत आंदा जांदा सी ते ओहदे बार मैं ठीक है देखदा ये करदे की देखदे की है। मैं तो एक प्रभु नूं भी नहीं जान, प्रभु यीशु दे नाम नूं भी नहीं जानदा सी, इक्को शब्द जानदा सी ईसा मसीह कोई है, लेकिन पूरा पता नहीं सी कौन है क्या, कुछ नहीं पता सी। इसलिए मैं अपने दवाद नूं बोलिया ते बेटा तुसीं पहलां मैनूं बाइबल लिया के दे, फिर मैं देखदा की तुसीं करदे की है कि मैं देखना चाहता। मैनूं पता नहीं सी प्रभु कौन है, परमेश्वर कौन है। इसलिए फिर मैं बाइबल लिया मंगवाई अपने दमाद कोलों ते उसने बाइबल लिया के फिर मैं डेढ़ महीना बाइबल पढ़ी। जिस दिन मैं बाइबल पढ़ी उसे दिन मैनू पता चलिया कि परमेश्वर कौन है, इस जगत दा रचयिता कौन है, इस जगत दा रचयिता कौन है, कौन इस संसार नू बचाने लिए आया, सारे मारन लिए आया, बचाने लिए कौन है इस परमेश्वर ते प्रभु यीशु मसीह कौन चढ़ा सलीब ते, कौन चढ़ा, किसने जगत रचा, कौन इसने ते कौन किसने अब पानियां ते धरती नू ठहराया। तारीफ करिए पहले जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ कि जब इनको
पता लगा, बाइबल पढ़ना इन्होंने शुरू किया, तो उसके बाद इनको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। पहले केवल नाम पता था कि ईसा मसीह, यीशु मसीह कोई है, लेकिन पता नहीं था कि यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए, हमारे पापों के लिए क्या हुआ, क्या हमें यीशु मसीह ने किस तरह से उद्धार देने के लिए हमें तैयार किया। जब बाइबल को पढ़ना शुरू किया, इनको फिर समझ आना शुरू हुआ। आपने फिर लगातार चर्च की मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। ਜਦੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵਾਂਗਾ, और बाकी के रास्ते ब्लॉक साइड। तारीफ करें सब जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, 19 सितंबर की बात है ये, 19 सितंबर 2021 19 सितंबर पहले दिन ही चर्च आया, पहले दिन में बपतिस्मा लिया और मैनू पिता परमेश्वर ने इन्ना फ्री किया ते मैं डर तो फ्री, बहम तो फ्री, ते मैं पेट वधिया बीमारियों तो फ्री, पागलपन तो फ्री, लेकिन मैं नींद मैनू नहीं आती सी। लेकिन क्या होया, मैं प्रभु दे विच हजूरी इत्थे आउंदा ही रहा हर एतवार। जदों आंदा रहा तो मैनू विश्वास सी, जदों परमेश्वर इसे गवाहियां देख के मेरा विश्वास पूरा होर बढ़ता गया, ते मैं अपने विश्वास प्रभु दी बहादुरी अड़िया ते खड़िया रहा। मैनू प्रभु परमेश्वर ने ते नींद तो भी जदों मैं प्यार प्रार्थना पापा ने 2000 फरवरी 2021 11 फरवरी तो पहले की नींद वाले, उसे दिन मैं पहले दिन 12 फरवरी तो बाद पहले दिन 6 घंटे नींद फ्री सुनता। तारीफ करे, सब खड़े हो जाए अपने स्थान के ऊपर इस बड़ी गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से अपने हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोल दो। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि 19 सितंबर 2021 को जब ये चर्च में आए, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उसी दिन इन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन ये भाई फ्री हुए। और उसके बाद जब ये घर जाके सोए, तो पहली बार 20 सालों में बिना किसी दवाई को लिए इनको 6 घंटे ऐसे नींद आई जैसे परमेश्वर ने इनको कंप्लीट कर दिया हो, परमेश्वर ने इनको हील कर दिया हो, परमेश्वर ने पूरी रीति से चंगाई दे दी हो। आज 20 साल से जो व्यक्ति पागल था, जो आर्मी ऑफिसर था, वो आपके सामने खड़े गवाही के साथ कि अभी ये पूरी रीति से फ्री है, पूरी रीति से परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। 5 महीने से ये भाई पूरी तरह से पागलपन के अटैक से आज डिलीवर हो चुके हैं, आजाद है। जोर से हालेलुया बोले। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए इस बड़ी गवाही के लिए, इस बिग हीलिंग के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे।